312 پرائمری اسکول سینٹر کیروبات اور برٹش گورنمنٹ تم پرائمری اسکول ہم تو لہذا مولاگ ہن اسکول ہم لہذا تعلیم بٹ بھگتان بٹ کمزوری بلا سنس کی ڈی جے اسکول منظور حج خد اللہ بے کے کردار بلا شاہ کریم ہاسٹل اور دا خود اپنا می ہیلتھ اور 380 کنال زمین مزید کے لیے 4 دیواری بلا تو کھوئے خاندان خدمات ذکر تنگ شام میں بھی بہرحال ممیون عیاں بلا لہذا گزارش چم کے بوٹن نشکون دیبان ویون شوبان ہنک لوگ لکشنا پائی لیکن می امیت عقیدہ بلکے تا عقیدہ کے میں شلدہ بلکے امیت حکومت دی مکتے کا تعاون کی جسے تیلہ کے جا امید چبا کے ما مکمل تعاون تنکان صاحب کامیاب چوان اور انشاءاللہ کامیاب بھائی انشاءاللہ تو بہت مہربانی بہت شکریہ با چاگا لمبا سمکھینے ٹائم خیال سالوان یا چاگا دوران میں گلک سے اللہ کے آرما پھتے والسلام ماں بہت بہت شکریہ نمبردار صاحب. اب اس کے بعد میں پاکستان تحریک انصاف ہنزا کے جنرل سیکریٹری علی احمد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ذریعے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنڈیڈیٹ بدلہ بیگ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے حلقہ 6 ہنزا، وومنز ونگ گلگت بلتستان کی جنرل سیکریٹری دلشاد بانو صاحبہ، راجہ شہباز صاحب ٹریڈرز ونگ کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری ہیں، پورے پاکستان کے ان کے پاس عہدہ ہے. ساتھ میں ہمارے الوائز اسلم صاحب ایکس وائس پریزیڈنٹ ہیں گلگت بلتستان کے. نمبردار شناور صاحب اعلیٰ نمبردار ہیں کریم آباد کے، اور ڈسٹرکٹ ہنزا کے وائس پریزیڈنٹ جناب درویش صاحب، اور ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ ہنزا تمام مہمانان جو وہاں سے آئے ہیں، میری مائیں بہنیں اور ہنزا کے عوام اب تمام کو السلام علیکم. میں زیادہ وقت نہیں لوں کیونکہ وقت کی کمی ہے، آلریڈی دیر ہو چکی ہے. مختصراً اس علاقے کے جو مسائل ہیں ان پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلے پچھلے پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایک پروجیکٹ رکھا تھا، اس کے بعد نون نے بھی اس کو کنٹینیو کیا، مایون پاور ہاؤس کا. آلریڈی ہنزا کے اندر الیکٹریسٹی کے کافی مسائل ہیں، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، پاور کے بہت ایشوز چل رہے ہیں، تو وہ تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا. بدقسمتی سے نگر کے جو پاور ہاؤسز تھے ان کے تو جو ٹی جے سیٹس کہتے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. البتہ ہمارے اس ہنزا کے اور شناکی کا جو پروجیکٹ تھا 800 کلو واٹ کا، اس کے ٹی جے سیٹ ان کے ساتھ آنا تھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ ٹیکنیکل ایشوز بنا کے وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں. تو سب سے بڑی ہماری بجلی کا مسئلہ ہے، تو اس کو فی الفور اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات، جیسے کہ لوکل کونسل کے ایکس پریزیڈنٹ جناب غلام مصطفیٰ صاحب نے اکنامک ایکٹیویٹیز کا ذکر کیا، تو ہماری پہلے زمانے میں جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی یہ سلک روٹ کی وجہ سے ہوتی تھی. اب کیکیج بننے کے بعد میون حسین آباد خان آباد کا جو لوور شناکی کا ایریا ہے وہ بالکل کٹ چکا ہے، کیونکہ کیکیج سے ڈائریکٹ لنک ہمارا نہیں ہوتا ہے. تو پورے ہنزا کے لوگ ٹورسٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹوریزم انڈسٹری سے تقریباً ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم 3 گاؤں اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے. بس صرف ہنزا کے ہیں، یہ کہیں جاتے ہیں تو سنتے ہیں کہ آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہوگا، لیکن 1 روپیہ کا بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے، آلریڈی جو ہمارا خان آباد تو ناصر آباد روڈ کا آپ کے نالج میں ہے، کئی بار آپ چیف انجینئر کے پاس حسین آباد میں خان آباد اور ناصر آباد کے وفد کے ساتھ آپ آ چکے ہیں، آپ کے نالج میں ہے، اس کو تھوڑا اور پش کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بیوروکریٹک سٹائل ہے پاکستان کا، وہ ان جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے کس طرح سے وہ ڈیلے کرواتے ہیں، تو وہ بھی ان کا کوئی نظر ہوا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے اس پہ زیادہ الیکشن سے پہلے ہی ان کو فالو کر کے ان کو تھوڑا پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے ان بیوروکریٹس کو، تاکہ یہ روڈ تھرو ہوگا تو ٹورسٹ یہاں سے جائیں گے تو ان کا فائدہ بھی ہمارے علاقے کے لوگ لے سکیں گے. ہمارے اسکول کی جو آبادی کا ذکر ہو رہا تھا، میں اس اسکول کا کنوینر ہوں، ڈی جے اسکول کا. کسی زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے
400 प्लस 500 तक स्टूडेंट्स होते थे, अभी 125-130 के करीब है। उसकी बड़ी वजह माइग्रेशन है। लोगों के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं होंगी तो मजबूरन वो गांव छोड़ के बाहर जाएंगे, और गांव की आबादी कम होगी तो कम आबादी के लिए न स्कूल सही बनता है, न हॉस्पिटल सही बनता है, न और फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये मेरी आपसे गुजारिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हवाले से ये रोड बहुत हमारे लिए अहमियत का हामिल है। और तीसरी बात, मेरे ख्याल में शायद हुंजा में वाहिद हमारा गांव है जहां पे पीने का साफ पानी अभी तक अवेलेबल नहीं है। हुसैनाबाद के कुछ एरियाज के अंदर एक टैंकी बना के जो नहर से पानी आता है वो तो मिल रहा होता है, अलबत्ता बाकी को वो भी पानी नहीं है। साफ पानी तो दूर की बात है, उनके लिए भी पानी के कनेक्शंस नहीं है। तो मेरी गुजारिश है, लास्ट टाइम भी हमारे गांव के माहिदीन ने डिमांड किया था कि हमारे गांव के लिए पीने का पानी बहुत जरूरी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई गवर्नमेंट की स्कीम रखवा के हमें पीने का पानी मुहैया करें। तो मैं आप तमाम का बहुत वक्त नहीं लूंगा, आप तमाम का बहुत शुक्रिया, और साथ में कर्नल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आप आए हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद भी रखता हूं कि आप इलेक्शंस के बाद भी जो हमारा मिशन है कि हर तहसील के अंदर हमारे जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो गए पीटीआई का, उसमें आप महीने में 2 नहीं तो कम से कम 1 बार विजिट करके हमारे गांव के जो मसाइल हैं इन तीनों गांव को उसको हल करने में अपना रोल करेंगे। सबसे बड़ा मसला उस टूरिज्म को इस तरफ लाने के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी हमारी आपके साथ बातचीत होती रहती है इस इश्यू के हवाले से, जो आरसीसी ब्रिज है शहीद अफसर खान ब्रिज, उधर बाबा हुंजा का बनना बहुत जरूरी है। जब तक बाबा हुंजा का नहीं बनेगा बोर्ड, वहां पे एक यादगार नहीं बनेगा, उस वक्त तक टूरिस्ट इस तरह हमारी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि वो हुंजा देखने आते हैं ताकि उनको पता चले कि ये हुंजा यहाँ से शुरू होता है। तो ये मतलब प्रायोरिटी पे ये कुछ मसाइल हैं, इनको बहुत हल करने की निहायत जरूरी है। तो आप तमाम का बहुत शुक्रिया, आप तमाम का लख्तिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली अहमद साहब। अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब राजा शहबाज साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ज़री ख्यालात से इस महफिल को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कर्नल साहिब GBLA 6 के टिकट होल्डर, मोहतरम मैडम दिलशाद बानो साहिबा, और मेरे अल वाइज साहिब, और मेरे मोहतरम बुजुर्ग शनावर साहब, और मेरे बुजुर्ग साहिबान मोहतरम, और इसमें मैंने देखा कि मोहतरम फिदाली साहब भी बैठे हुए हैं। कि ये इसलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जिस वक्त यहाँ बॉर्डर खुला था सबसे पहले यही अपॉइंट हुआ था पाकिस्तान कस्टम में। तो उनमें जब अथर मिल्ला साहब आए थे तो उन्होंने 5 बंदों को अपॉइंट किया था, जिसमें कादिर मीर साहब, बहादुर बेग, और मेरे मोहतरम फिदाली साहब, और गुरमीत के मरहूम सरवर साहब, और जमालाबाद के सरवर। हमें फख्र था। उसके बाद किसी ने कस्टम में कोई बंदे को नहीं लिया है। मैंने उस दिन कलेक्टर साहब से और स्पेशली अथर मिल्ला से गिला भी किया कि आपके लगे हुए पौधे मुरझा गए, दोबारा इनको लगाओ नए तरीके से। सबसे पहले मोहतरम मेरा उस्ताद भी है अल्ताफ साहब, यानी टूरिज्म का बानी है। अगर जीबी में कोई इंडस्ट्री है तो टूरिज्म है, टूरिज्म को फहाल करना है। सबसे पहले मैं कन्नड़ साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह मेरे से जय साहब ने बताया, बिल्कुल सोलाना बात की। अब इसमें इनका काम है कि हमें प्रपोजल बना के दे दे। ये माहिर इसने जितना जाती तौर पर मुझे फायदा दिया या हमारे हुजा को दे दिया, लेकिन अपने इलाके को नहीं दिया। अपने मोहतरम जानलम साहब जिस तरह भी है, और मेरे मोहतरम बुजुर्ग, हमने इस्लामाबाद में मीटिंग भी किया था इस चीज पे, इलेक्शन के बारे में भी। लेकिन आज खुशी है कि हम बैठे हुए, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह है कि अब होती है कि ये एक आपको याद है कि यहाँ पे आला नंबरदार शाहगुल अजीज साहब ने एक बात की थी आज से 20 साल पहले, कि इंसानी जिस्म एक बदन है, ये हाथ गोजाल है, ये हाथ शनाकी है। सेंटर वाले हमेशा में नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें हमने कर्नल साहब को यही रिक्वेस्ट किया है कि हम साथ है। मेरे पास भी, बल्कि मैं इसलिए आया हूं कि इसमें मेरा एक ओहदा है सेंट्रल का पाकिस्तान ट्रेड विंग का। इसमें इंशाल्लाह कर्नल साहब के साथ हम इकट्ठे होके और इंशाल्लाह ऐसे करेंगे कि पूरा एक नया सिस्टम आप लाएंगे।
اور بالخصوص شراکت والوں نے جس جذبے کے ساتھ ووٹ دیا تھا اسی طرح ہی دیں گے، مجھے یقین ہے. لیکن اگر صحیح ووٹ دیں گے تو صحیح کام ہوگا، اگر کرکار کریں گے تو کرکار ہوگا. ہاں، تو اس میں یوتھ کی بات ہے. یوتھ کے لیے میں انشاءاللہ ٹریڈ ونگ کی طرف سے چائنا سے نا جتنے بھی ان کا ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے 1986 میں بارڈر ٹریڈ کا، جس میں ننفذ علی کو پتہ ہے، اس میں فی یوتھ یعنی جو بھی نوجوان وہاں سے بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کا 3 لاکھ کا ایگزمپشن ہے ان کا ڈیوٹی. آپ آ جائے نوکری. اس کے بعد امپلائمنٹ میں سب سے پہلے، بلکہ مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ چپورسن اور شمشال اتنا لمبا علاقہ ہے، وہاں پہ 6 کلی ہے. نگر 6 کلومیٹر میں 60 کلی ہے. یہ سب سے پہلے اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا کہ گانی سے لے کے نگر تک 60 کلی ہے، شمشال سے لے کر ادھر تک چپورسن تک 6 کلی ہے. ان میں سے بھی کوئی مرنے والا ہے، کوئی پینشن جانے والا ہے، تو اللہ حافظ ہے. تو سب سے پہلے آپ کو وفاداری کرنا ہوگا. اگر یہ بات کسی نے کیا نہیں ہوگا. ہم نے عمران خان کے ویژن پہ کام کیا، بے نظیر انکم سپورٹ کے 6000 لوگوں کو پیسے دیے ہیں. ان میں سے آپ کو کتنے پیسے ملا ہے؟ ان لوگوں میں سے 4.5 سینٹر ہنزا کو ملا ہے، اس میں سے شناکی کو کتنا ملا ہے؟ آپ مجھے یقین ہے کہ جن نے 12,000 روپے لیا ہے وہ عمران خان کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، وہ بیٹ پہ ضرور وہ ٹپا لگائیں گے، ورنہ وہ دوبارہ اگر جس نے نہیں کیا اس کو کاٹ لیں گے، اس کو وہ بھی بند کر لیں گے. اور دوسری بات یہ کہ گوجال کے لیے 1500 دیا ہے. میں نے جیس صاحب بلکہ ایسی آفس سے وہ لسٹ لے لے، جس کو دیا ہے اس کو مزید بڑھائیں گے. ہم یہ ہیں کہ نا یہ نہ دیکھیں کہ سیلاب ایک دفعہ تھا، چشمہ 12 مہینہ رہتا ہے. کبھی ہمارے مختلف دوست آتے پیسے تقسیم کرتے فلان یہ کرتے ہیں، تو اس میں نہیں، پیسے کھاؤ اور لیکن ووٹ اپنا ضمیر کا دے دو. پیسے کھاؤ ووٹ اپنا ضمیر، کیونکہ اس گاؤں سے جس طرح مجھے بغیر بے لوس ووٹ دیا تھا اسی طریقے ووٹ دے دو کرنل صاحب کو. کیونکہ میں نے کوئی پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی نے جس کو کہنا کرنل صاحب ہمارا پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہے، اس پہ ٹھپا پہ ٹھپا بلے پہ ٹھپا. یہ میں نے میر صاحب کے ساتھ بھی آ کے یہی تقریر کی تھی. اور انشاءاللہ اس وقت میرے محترمہ ہمارے اوشم بھی ہے دلشاد بانو صاحبہ، تو یہ بھی کافی کوشش کر رہے ہیں ہمارے گوجال کے جو ہے، اس لیے کہ ہم نے کرنل صاحب کے ساتھ پورا حمایت کا اعلان کیا ہے. یہ نہیں کہ اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ گمون سبان جب ہم نے گمون سے شروع کیا تو پھر وہ بنیاد پکا ہو گیا، تو وہ چادر کنے RCC کا ہوگا. تو اس لیے یہ ہے کہ معافیت مار تو انشاءاللہ گتولو کامیابی تسبیلا عمران خان صاحب 1 نومبر دوچائی اور اعلان چاہے اپنا بوٹ بس کے مناسب جس سے اگر بلاول دی میں کل این موچی تو من این موچی لیکن آخری دین دا بلڈوزر دلس میں بلا روڈ چرانا میتیتی میں کہ روڈ بالکل لیکن گتہن تاریخی گاون بلا بلت بپو نظم خان دا وزیر کچھ کتھا موہن منو لائل جی مینر بمخمی بلا. تو ایتیسم تیمنا سواجی کے ماں کے کھول جاو یعنی بوٹ یعنی مشہور یعنی آئیڈیا چیز میر امیت آئیڈیا چیزم کھول میکا بائی اور بوٹ اور انتہائی امیت اپنا ٹوریزم لو امیت درون تسمیلانا کھول مونومنٹن منا سواجی تے اٹیکشن منیش کے پولو میں چنوسی ایتکانی چیز مارے چن بلٹ چپورسن سپیشل نیچان کھولتے ہفتوار یا مینوار ہن میچ نوسس بیسک انٹروڈکشن ہے تسگانے ہن چیزن گانے ہن علس تسگانے تو فیزیبلٹی میں محترم الطاف صاحب دس میں باقی موصل لو اتنا زمانہ تو کن استاد فورڈ گزر چم فورڈ ماتا جو کچھ کماتا خود کھاتا ڈرائیور کنڈکٹر کو ایسی کراتا سنا تو باقی قوم کو کچھ بھی نہیں دیتا. تو اس لیے یہی دونوں نے یہی کیا میرے بھائیوں نے. تو اتنے تم بات بڑھ لمبا چگا ایچن بہت اگر دوران گفتگون بسن غلطی میں لگے اور جا سب سے پہلے گفتگون رائبہ کوویڈ دوران لو بسن امداد اور سیس بلوم کی جا ریلیف اچھا با مارکس یوں با دوسرا ناصر آباد سن شناکیر بسن سنان کے تھاپ سنانا سنانا کویوت یونا ہمیشہ جا کیٹ سم پیسا سم آلف آفیس سم یونا رویبا تو یوت کا اور جا امید جبا کہ یوت کے پہلے تھی بھرپور تعاون چون ہک تعاون
هون ازمايا متين ان شاء الله دا ميدا ماما ازمايا مچن پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد کرنل صاحب زندہ باد پھپا ٹپا بلا پٹپا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर हमारा कर्नल उबैद साहब, हमारा राजा साहब और जो हमारे लंबरदार साहब काबिल कदर, हमारे हुंजा के वाइस साहब, वाइस प्रेसिडेंट और दरवेश भाई, हमारे पीटीआई के जितने हमारे हुसैनाबाद के अमायदीन काबिल कदर और मीडिया के जो भाई है, हमारे यूथ है, हमारी ख़वातीन है, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत बातें हुई पहले और राजा साहब ने तो बिल्कुल ही हमें बोलने की कोई मौका ही नहीं दिया और सब कुछ क्लियर किया। तो मैं ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरा कोई नया यहाँ पे हुसैनाबाद में आना वो नहीं है। मैं तो आती जाती रहती हूँ। कर्नल साहब, मैं तो 2 साल पहले भी इन्हीं ख़वातीन, मेरी माओं को, मेरी बेटियों को यहाँ पे जमा करके जो इनके डिमांड थी, शायद मैं अभी तक पूरी नहीं कर सकी हूँ, तो इंशाल्लाह अभी ज़रूर करेंगे। ख़ासकर मैं राजा साहब से मुखातिब हूँ कि अल्लाह ने आपको इतना अच्छा मौका दिया है। हमें पता है आपकी पर्सनालिटी की, और आप जो पूरा पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और हमारी ख़वातीन जो है बहुत बहादुर ख़वातीन है, चाहे हुसैनाबाद हो, चाहे हुंजा हो, चाहे गुजाल हो, बहुत हमारी ख़वातीन बहादुर ख़वातीन है। अगर इंजीनियर बनाए हैं तो भी इन्हीं माहों की मेहनत से बनी है, और जो हमारी टीचर्स है तो भी इन्हीं की मेहनत से बनी है, क्योंकि ये पहाड़ों पे भी हमारी ख़वातीन जाती हैं, मैदान में भी यही काम करती हैं, और पढ़ी लिखी भी है हमारी जो नए जनरेशन हमारी बेटियां हैं। मैं हजार आफरीन करती हूँ कि इस रोड पे आते वक्त जब भी मैं आती हूँ जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरी पूरी हमारी कम्युनिटी यहाँ पे बैठती है तो मुझे क्या डर है। तो मेरी अपनी बहू भी इसी गांव से ही है, और मेरी अपनी रिश्तेदारी भी है हुसैनाबाद, खानाबाद, नासिराबाद और शमशाल तक। तो मैं राजा साहब आपका तवज्जो चाहे, हमारी ख़वातीन के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। इनके पास दूध भी है, इनके पास लस्सी भी है, इनके पास दही भी है और फ्रूट भी है। उस फ्रूट से आप खुद हर चीज से आप वाकिफ है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो तो कहाँ तक खाते रहेंगे, बेचने के लिए कोई इनका रसाई पैदा करना है। जैसा धन्योर में दूध का फैक्ट्री है, वो इसी तरह का एक हुसैनाबाद में नहीं, खानाबाद और जो दूसरा गांव का मयन, इन तीनों जगहों में ये होना चाहिए। और हमारी ख़वातीन जो है इनका दूध बिकता नहीं है, 2-2, 3-3 गायें इन्होंने रखी हुई है, वो कहाँ तक अपने घर में इस्तेमाल करेंगी। अगर ये हुआ तो उससे इनको इनकम भी आएगा और अपने बच्चों को पढ़ाने भी मदद होगी और इनकी घर की कफालत भी होगी। तो ये जो है रोड जो है, पहले बता दिया कि रोड का बहुत मसला है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे कर्नल साहब को, मेरे भाई को कामयाब इंशाल्लाह करेगा, और आधा हो भी गया है, अभी पूरा होने वाला है। क्योंकि अभी हमारे ऊपर है, मेरी बेटियों के ऊपर है, मेरे भाइयों के ऊपर है, हमारे यूथ के ऊपर है। आप खुद सोचें। लेकिन राजा साहब आपने दिल खफा नहीं करना, मैं कुछ बोलने वाली हूँ। क्योंकि 60 साल में या तो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है या तो नून वालों ने हुकूमत की है। नून में कौन था? हमारा राजा साहब था। राजा साहब नहीं, अपना मीर साहब था। ठीक है, इन्होंने तो बोला तो होगा, हमारे राजा साहब
दरमियान में बैठे हुए हैं, काम करो, मगर अतीका की वजह से हमारे हुंजा में कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है, कोई काम नहीं हुआ है। मैं उस पे मैं क्या कहूँ, आप लोग के हमारी माएँ, हमारी बेटियां, हमारी पढ़ी लिखी हुई बेटियों को वो हर जगह जाकर कहती थी कि हुंजा की औरतें गाय के साथ बैठती हैं, उनको कुछ आता नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी बेटियां, मैं खुद जमींदार की बेटी हूँ, मैं खुद हुंजा की बेटी हूँ, आज तक हम किसी, हाँ जरूर वडेरे है, हमारे वडेरे है, गाय भी रखते हैं, इनके पास जमींदारी भी है, इनके पास जमीन भी है, उसकी तरह एक हाथ लेके गजनफर को लूट के अपनी फैमिली से भी अलग किया, उसने अपने बेटों से भी अलग किया, उस औरत पे हजार लानत हो। तो मेरे और आपके लिए क्या करती हो? इसलिए मेरे कहना पड़ा कि आप लोगों ने वोट मौला के लिए, मैंने मौला का नाम लिया, आप लोगों ने वोट जाया नहीं करना है, अपना वोट हक है। ये भी नहीं कहना कि पहले वालों ने क्या किया, तो कहते भी हैं कि हम अब ये क्या कर, हम बहुत कुछ करने वाले हैं। जैसा राजा साहब ने कहा कि अभी 1 नवंबर को वजीर आजम पाकिस्तान आ रहे इमरान खान, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ ऐलानात करने वाले हैं, तो आप खुद खुश हो जाएंगे। आपका भाई हमारा कर्नल उबैद साहब जीत जाएंगे तो हम खुद लेके आएंगे, कोई काम से दरीख नहीं करेगा। इसीलिए घर से बाहर निकले हैं, न इनके खाने का कमी, न इनकी इज्जत की कमी, सब कुछ है, लेकिन सोचा कि मैं निकल के अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी आवाम के लिए, जो पिसते रहे, जो सोने के प्लेटों में पीपल पार्टी को बिठाया गया, सोने के प्लेटों को नून को बिठाया, नून को हमारा अपना राजा साहब को, गजनफर को बिठाया, बीवी को बिठाया, तो इनको एहसास हो के घर से बाहर निकले हैं। तो आप लोग भी इसी तरह, इसी जज्बे से आप लोग, मेरी बेटियां हाथ खड़ा करें कि वोट देंगे कि नहीं कर्नल साहब को, आपके भाई को, हाथ खड़ा करें सारे, हमारे भाई भी खड़ा करें, और इंशाल्लाह हमारी ये गिनती होगी कि कितने आप लोगों ने वोट डाला तहरीक इंसाफ को और कितने नहीं डाला, ये गिनती भी होती है। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कोई पंजाब से नहीं आई हूँ, मेरा अबू को भी जानते होंगे, मैं मुर्तजाबाद की, आपकी यहाँ की बेटी हूँ, हैदराबाद में मेरी शादी हो गई है, तो डॉक्टर मुर्तजा को जानते होंगे, मैं कहीं से नहीं आई हूँ, आप में से ही एक जमींदार ग्रास रूट की मैं बेटी हूँ, मगर इमरान खान का मिशन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मिशन देख के मैं इस PTI में आई हूँ, और मैं इसी में तन मन जान से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि इमरान खान बहुत अच्छा है, कोई चोर नहीं है। नवाज शरीफ की तरह, जरदारी की तरह हमारे बच्चे जो है रुलते हुए कराची में जाके पढ़ते हैं, उनके बच्चे उनको संभाल के बक्सों के अंदर रखे हुए हैं। क्यों? कि कल जो है अवाम का माल जो संभाला है उन्होंने, कल का कौन खाएगा? वही गिनती में उनके अपने बच्चों को बिठाते हैं। हमारे गरीब के अवाम जाके कराची में कहाँ रुलते हुए हॉस्टलों में बैठ के हमारी बेटियां, हमारे बेटे, मुझे पता है इस मेहनत से भी अल्लाह ताला हमारे बच्चों को कामयाब करता है। आज उनका कोई बेटा डॉक्टर क्यों नहीं है? आज उनकी बेटी कोई टीचर क्यों नहीं है? तो इसीलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि वो अंदर अवाम का पैसा जो जमा किया है वो सिखा रहे, उनको बता रहे वरेसा में देने के लिए ये पैसा इस तरह कमाना है, इस तरह चोरी करना है, तो ये सारा कुछ उनका है। उन पर कोई वोट का ऐसा तवज्जो भी नहीं करना है। जैसा मेरे भाई ने कहा, हुसैनाबाद से पूरा वोट हमारे कर्नल साहब को है और इमरान खान को है, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने गौर से सुना। और दूसरी बात, हम ये भी कहते हैं कि खान साहब ने कुछ थोड़ी बहुत महंगाई किया, वो कुछ मजबूरियां भी है, तो है महंगाई, हम भी थोड़ा गिला करते हैं, महंगाई है, हम समझते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी लाते हैं बाजार से, हमें पता है महंगाई थोड़ी सी है, वो इंशाल्लाह ये भी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, हाँ उसको ऊपर अभी बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्यों? हमने क्या दिया है उसको? खान साहब को क्या दिया है? अभी मांग रहा है, उसको तोहफा दे दे। क्या तोहफा देंगे? कर्नल साहब को जिताए, कहे कि ये तोहफा हमने दे दिया,
अब आप उनसे मांगे, आप ये कहें कि अभी क्या देंगे। पूरा गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर है, सबने वोट वहां पे डालना है। कोई आप दिल में सोच नहीं रखना पीपल्स पार्टी और नून के लिए, न जीतना है न उनका वजूद कोई रहेगा, वो खत्म हो चुका है। आप लोग खुद देख रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं टीवी पे कल परसों ही पाक फौज को नवाज शरीफ ने जैसा उसने लफ्ज इस्तेमाल किया जनरल बाजवा को, फिर उसकी बेटी कहती है कि जो हम फौज के खिलाफ बोलते हैं तो हमें अंदर कर देते हैं, वो इंतकाम रह गए। अरे बेगैरत लड़की, फौज की वजह से तो हम जिंदा है। हमारे फौज जो है सियाचिन पे जाकर लड़ रहे, दुश्मन से जाकर लड़ रहे, जमीन पे यहाँ पे आग लग जाती है तो फौज पहुंच जाती है। कोरोना को खत्म करने के लिए फौज पहुंच जाती है। कोई पहाड़ गिर के सैलाब आता है तो वहां पे फौज पहुंच जाता है। हम उनका दिलो जान से शुक्रिया अदा करते हैं और मेरे साथ एक हम आवाज होके पाक फौज, पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम जनरल उबैद साहब, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हमजा का उम्मीदवार मोहतरम राजा शहबाज खान साहब, मेरी बहन मोहतरमा दिलशाद बानो साहिबा और बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन और हुसैनाबाद के बहुत ही काबिल एहतराम मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों और मेरी बहनों, मेरे माओ, आप सबको या अली मदद। मैं इस मजलिस में बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश इसलिए नहीं करूँगा कि जो कहने की बातें हैं वो यहाँ पर हो गई है तकरीबन, मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा। अलबत्ता मैं आया इसलिए हूँ कि आपको पता है 35 साल तक मैं तरीक़ा बोर्ड हैसियती वाइज काम करता रहा हूँ। यहाँ भी आया हूँ कई मरतबा वाज़ के हवाले से, लेक्चर के हवाले से, दूसरे इलाक़ों में भी मैं घूमा फिरा हूँ। मैं सिर्फ़ एक पैगाम देने आया हूँ कि इन 35 सालों में हुंज़ा के साथ जो सलूक हुआ है, हुंज़ा को जिस तरह से पासमानदा रखने की कोशिश की गई है, हुंज़ा को उसका हक़ देना तो कुजा उसकी हैसियत देने की भी कोशिश नहीं की गई है और हुंज़ा बहुत पीछे चला गया है। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि ये मौका है, अंग्रेज़ी में कहते हैं टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसा मौका कि अगर इसको हम हासिल करेंगे, इस मौके को हम पाएंगे तो इंशाल्लाह हम हुंज़ा को अपनी पुरानी हैसियत में उससे भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि गलती नहीं करना, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा गलतियाँ की है। इस दफ़ा हमने गलती नहीं करना है, हमने सही फ़ैसला करना है, हमने अपने हक़ में बेहतर फ़ैसला करना है। कर्नल साहब एक मुअज़्ज़िज़ इंसान है, उसके लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना हमें पड़ेगा अगर हमने सुस्ती की तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने वोट कर्नल साहब को दे दें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो हम कर्नल साहब के साथ बाद में भी आएंगे। मुझे यहाँ
मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि वाइज थे, तो इसमें बिल्कुल मैं 2016 में रिटायर हो गया था और उसी के बाद मैंने स्ट्रेट अवे PTI ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं इमरान खान की किताबों को पढ़ता हूँ, उनके आइडियाज़ को सुनने की कोशिश करता हूँ, उसके जो एक फ़लसफ़ा है, उसकी जो एक तस्वुर है, उसकी जो एक विजन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। और मुझे यकीन है कि अगर हमारी जमात इस हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह PTI उनजा की तकदीर बदलने के लिए बिल्कुल अपनी किरदार अदा करेंगे। और मैंने शुकुरसन में भी बताया है, गुलमित में भी बताया है, करीमाबाद में भी बताया है, अलीआबाद में भी बताया है, इधर भी अर्ज़ कर रहा हूँ और बार बार भी आकर हम अर्ज़ करेंगे कि हमें मोहतरम अकमल साहब पर मुकम्मल यकीन है, क्योंकि वो एक बासलाहियत इंसान है, वो एक तजुर्बाकार इंसान है, उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों में सर्विस दी है और उनको पता है कि जमात की खिदमत किस तरह से होती है और जमात के मफाद किस बात में है। मेरी गुजारिश है कि आप उनका साथ दे दें। मैं अकेला गुजाल से नहीं हूँ, यहाँ बहुत सारे हैं और सबसे बढ़कर मोहतरम राजा शहबाज साहब जिनके ताल्लुक़ में गुजाल से हैं, इन्होंने जो बात की है ये बुनियादी बातें हैं, तो इसलिए इसको याद रखने की ज़रूरत है। मैं यूथ से ख़ुसूसी तौर पर गुजारिश करूँगा कि यूथ अपना किरदार अदा करें। आपके ज़रिए से इनकलाब आएगा, आपके ज़रिए से तब्दीली आएगी, आपके ज़रिए से डेवलपमेंट होगा, आपके ज़रिए से चीज़ें आगे बढ़ेंगे। अगर आप में सुस्ती आ गई तो फिर कामयाबी मुश्किल होगा। तो बस ये मैसेज देने के लिए मैं आपकी खिदमत में आया था और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर गौर करेंगे। बहुत शुक्रिया।